और इस वक्त हमारे साथ हाईकोर्ट के लॉयर दिबानो बैनर्जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो बताएंगे आपको कि कल जब वो पुलिस से बात करने के लिए गए तो उन्होंने क्या कहा, कल पुलिस से क्या बात हुई। देखिए, बेसिकली जब कल रात को मैं पुलिस स्टेशन जब पहुंचा, what we saw on the video that there was no arrest memo produced. The client did not know that what were the sections that the FIR was registered and who was the complaint. So इसके बाद जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, मैं थाना में जाके जो ओसी था उसी को बोला कि अब FIR का जो कॉपी है और जो कंप्लेंट का कॉपी है, ये दोनों कॉपी मुझे अब जल्द से जल्द प्रोवाइड कीजिए, जो मुझे प्रोवाइड नहीं किया गया और अभी तक आज सुबह तक भी वो प्रोवाइड नहीं किया गया था. But what they provided was one arrest memo, and that arrest memo even was forged because, as Shantupan told me, those arrest memos, they were signed thrice. So one arrest memo, they said कि उन लोगों से गलती हो गई, एक बार फिर से साइन कर लो और एक बार फिर से साइन कर लो. फिर जब जाके मैं जब पहुंचा, मैं बोला कि अब कभी भी मुझे ना पूछ के या फिर किसी से कंसल्ट नहीं करके आप वहां पर हरगिज साइन मत कीजिएगा. उसके बाद वो साइन नहीं किया है. So I think that the sections that were incorporated in that arrest memo, those will be added, altered, omitted. Okay, so that is one main contention of it. And another thing is, we saw that the cases are in section IPCs 447, 448, that is criminal trespass to someone's property, 354, 354C, that is sexual harassment, and along with that 506, 509 and 34 of IPC. Yet the FIR was lodged only against one person. 34, you know, it will lie only if there is a conspiracy, if there is a group of people. 506 and 509 if you threat someone or intimidate someone. So as far as of the situation, I think that the FIR and the complaint is completely bogus. इसका आपका कोई बुनियाद ही नहीं है. पूरा एक स्टोरी सजाया गया, एक नैरेटिव जो है, एक नैरेटिव रचना किया गया, just to shut the press up what Republic was doing in the last few days there, just उन लोगों को चुप कराने के लिए ये एकदम पूरा एक स्टोरी बनाया. ये तो लेकिन आप बहुत शॉकिंग बता रहे हैं बात कि जो अरेस्ट मेमो है उसको किसी बार बार बदला गया. तो क्या ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा प्रेशर था जो पुलिस को बता रहा था कि नहीं अभी ये सेक्शन जोड़ दो, अभी ये सेक्शन जोड़ दो, और इसीलिए कंटिन्यू उसे चेंज किया जाए? Exactly. And when I went there, they said that they won't be incorporating sections 506 and 509. Okay, but when I said that, then why are these sections written in the arrest memo? They said नहीं वो गलती से हम लिख दिए थे, हम जाके फिर से वो करेक्ट करवाएंगे. That is when I went to him and told that just do not sign anywhere without consulting it to me. So there is 100% there is case of forgery. नहीं, गलती से ये कैसे हो सकता है भाई? एक बात मुझे सर बताइए, क्योंकि आप तो लॉयर हैं, मैं एक बात समझना चाहती हूँ. जो पुलिस कोई भी सेक्शन लगाती है तो वो उसके लिए पहले इन्वेस्टिगेशन होता है. जब उसको लगता है कि नहीं ऐसा हुआ है तभी तो सेक्शंस लगते हैं. ये गलती सेक्शन लगाने में कैसे? गलती से सेक्शन कभी नहीं लग सकता है. एक्चुअली ये जो पूरा प्रोसीड्यूर है, ये पूरा प्रोसीड्यूर, इट्स अ शेम इन द फेस ऑफ लॉ, इट्स अ शेम इन द फेस ऑफ डेमोक्रेसी. व्हेन दिस आर द सेक्शंस एंड यू डू नॉट प्रोड्यूस अ 41A नोटिस टू द अक्यूज्ड पर्सन एंड यू डू नॉट गिव हिम द चांस टू डिफेंड हिमसेल्फ, व्हेन द होल थिंग वाज रिकॉर्डेड लाइव इन कैमरा. So there was a clear case of investigation. If someone have complained to the police station, then he could have or he or she could have gone to the police station. Then Shantu could have been served with a 41A notice, and with that live footage he could have gone to the police station and showed that, see, this is the thing that we have recorded and there is no such violations of any of the sections of Penal Code of India. So that chance was not given to him. That is clear violation of law. 41A notice should have been served here, which is not been served. The copy of the FIR, the copy of the complaint, that was also not been served, which is a mockery in the name of justice. In the next morning, today morning, from 6 o'clock to 8 o'clock, I constantly went to the police station. I wanted to give one application, ki provide me the FIR copy, provide me the complaint copy. They did not provide me the complaint copy or the FIR copy because they very well knew that there is some kind of fraudulent activities there. And if I showed that before the bail hearing, then I could have brought that before the judge. I think that is the main reason that they are hiding these stuffs and that making silly stories. सर, क्या इनकी पूरी कोशिश है कि संतुक को ज्यादा दिनों तक रिमांड में रख लो? श्वेता हमारे साथ बनी हुई है. श्वेता का सीधे यहाँ पर रुख कर लेते हैं. श्वेता, आज कोर्ट में संतु पान को पेश किया जाना है, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, FIR की कॉपी अभी तक नहीं दी गई है, प्रॉपर वजह अभी तक नहीं बताई गई है. ये कैसा शासन है ममता सरकार में? देखिए मोनिका, इस वक्त मैं आपको पहले यहाँ की तस्वीर दिखा देती हूँ. बशीरहाट में इस वक्त हम मौजूद है. बशीरहाट कोर्ट है जहां पर संतु को लेकर के आया गया है. यहीं पर कोर्ट में पेशी होगी और यहीं पर आज कोर्ट को भी बताया जाएगा कि कैसे जो ममता बनर्जी की सरकार है वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती है, वो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है, वो बदले की कार्रवाई करती है. क्योंकि अंदाजा आप लगाइए कि ये तो अधिकार संतु का भी था कि उनको वो नोटिस सर्व किया जाए जिसके तहत ये बताया जाए
जाए कि उनका गुनाह क्या है और उसके तहत उनकी अरेस्टिंग की कोशिश हो सकती है। ये जानना तो बिल्कुल अधिकार है संतू का, लेकिन इस अधिकार से भी वंचित कर दिया गया यहाँ की पुलिस की ओर से। यहाँ की पुलिस ने जो सेक्शंस लगाए हैं, जो भी वकील बता रहे थे, वो वकील जो यहाँ पर मौजूद है वो ये बता रहे थे कि किन किन धाराओं के तहत ये केस दर्ज किया गया है। और ये जो धाराएं आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगी। ये एक तरीके से ये दिखा रहा है कि ये सब कुछ प्री प्लान था, साजिश के तहत ये किया जाता है, क्योंकि सेक्शन लगाना, सेक्शन हटाना, अरेस्ट मेमो में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार साइन करवाना। भाई एक बार साइन होता है, लेकिन ये जब मंशा गलत होती है तो उसमें बीच में कोई सेक्शन जोड़ दिया गया। इसीलिए मैं ये कह रही हूं कि दबाव ऊपर से है, दबाव ऊपर से, और ये बताया गया कि कड़े सेक्शन लगा दो ताकि जो कार्रवाई है वो बड़ी हो जाए। यही वो दिखा रही है मंशा। जो अराजकता है वो क्यों है यहाँ पर बंगाल में, उसका जीता जागता उदाहरण संतू की ये गिरफ्तारी है। संतू को जब यहाँ पर लेकर के आया गया पुलिस की ओर से, तब भी संतू किस तरह से अपनी आवाज उठा रहे थे वो हमने सुना। पुलिस हालांकि उनको बात करने की इजाजत नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि कम से कम हमें पता लगे कि संतू के साथ क्या व्यवहार किया गया। पूरी रात आप समझिए संतू को बिठा करके रखा गया। संतू को का क्या गुनाह था। वहां जब वकील जाते उन्होंने कहा कि दिखाइए हमें आपने जो अरेस्ट मेमो तैयार किया है, जो एफआईआर की कॉपी है वो जो आपने तैयार की है। आप ये समझिए ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि आप किसी इंसान को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से परेशान कर दीजिए कि वो सच दिखाना बंद कर दे। लेकिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पहले दिन से हमेशा ये कहता रहा है कि हम डरते नहीं हैं, हम निर्भीक पत्रकारिता करते हैं, डटे रहते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है सच को सामने लाना। और वो सच जो बहुत कड़वा था, यहाँ एक तरह से कहें कि वो सच्चाई जिसको कभी दिखाई ना जाए, ये ममता सरकार की कोशिशें थी। तभी यहाँ कभी भी कोई जर्नलिस्ट नहीं पहुंचा था, क्योंकि यहाँ आने ही नहीं दिया जाता था। लेकिन आज जब मीडिया यहाँ पर पहुंची, पहली बार रिपब्लिक बांग्ला की टीम वहां पर पहुंची और उसने वहां जाकर के जब सच दिखाया तो यही बुरा लगने लगा, क्योंकि ममता सरकार की जो जड़ें हैं बिल्कुल और वो हिलने लगी हैं, क्योंकि संदेश खाली का सच सामने आने लगा था। और संदेश खाली को लेकर राजभवन भी अब एक्शन में आ गया है। जो पीड़ित हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। दर्शकों को यह जानकारी दे दें, संदेश खाली में कई महिलाएं पीड़ित हैं और राजभवन ने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। करीब 200 लोगों के रहने का इंतजाम किया गया है। राजभवन के अंदर ही खाने और रहने का भी इंतजाम किया गया है। यानी शिकायतों पर जल्द एक्शन लेने के लिए पीड़ितों से कहा गया है कि अगर आपकी कोई भी दिक्कत है तो उसे जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। 2 तस्वीरें जरा आप देखिए। पीड़ित महिलाएं संदेश खाली में मदद मांग रही हैं, लेकिन ममता सरकार सो रही है। ममता सरकार मदद के अलावा सब कुछ कर रही है। रिपोर्टर की गिरफ्तारी हो रही है, शाहजहां शेख को बचा रही है, और अब इसी पर राजभवन एक्शन में है। राजभवन खोल दिया गया है, पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और राज्यपाल घटना पर नजर बनाए हुए हैं। तो बिल्कुल एक तरफ जहां राज्यपाल इस पूरे घटनाक्रम पर उस वक्त अपनी नजरें बनाए हुए हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय का यह कहना है कि संतू की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर गहरी चोट है। जिस अवैध तरीके से संतू पान को गिरफ्तार किया गया है उस पर अब पूरे देश में सवाल पूछे जा रहे हैं। अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता, जिनका यह कहना है कि संतू पान की गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है और ये सच को दबाने की एक नाकाम कोशिश है जो कभी कामयाब नहीं हो सकती। संदेश खाली की जो घटना है, जिस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है, और रिपब्लिक टीवी के जो जर्नलिस्ट उस घटना को प्रसारित कर रहे थे, लोगों तक पहुंचा रहे थे, उस बात को जनता की आवाज बन रहे थे, उनके ऊपर जो अमानवीय तरीके से, गलत तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से वेस्ट बंगाल पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज करके अरेस्ट किया है, वो जर्नलिस्टिक फ्रीडम के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम दृष्टांतों के खिलाफ है। मीडिया को यह पूरी आजादी है कि वो किसी बात को कवर करे और उस बात को जनता तक पहुंचाए। ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई जर्नलिस्ट तो सच दबाने की कोशिश नाकाम होगी। हर तरफ से यही जो बयानबाजी है वो निकलकर सामने आ रही है। सीनियर अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय को भी आपने यहां पर सुना था। उधर ये भी बता दें कि संदेश खाली में अब 5 जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। शुभेंदु अधिकारी को रोक सकती है पुलिस, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल कोर्ट के आदेश पर संदेश खाली जा रहे हैं बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी, लेकिन जानकारी अनुसार शुभेंदु अधिकारी को पुलिस रोक सकती है, क्योंकि संदेश खाली जाने नहीं दिया जा सकता
सकता उनको संदेश खाली नहीं जाने दिया जाएगा। 5 जगहों पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है, यानी कि इसका मतलब ये है कि एक स्थान पर जो ये 5 जगह है जहां पर धारा 144 लागू की गई है, यानी कि एक स्थान पर 3 या 3 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। बेहद संवेदनशील ये मामला हो चुका है और ऐसे में बड़ी जानकारी বিশেষভাবে জানানো যাচ্ছে পুনরায় আবার নতুন করে ধামাখালি ঘাট সংলগ্ন এরিয়াতে 144 ধারা জারি করা হয়েছে। আপনারা 5 জনের অধিক জমায়েত করবেন না, অতিরিক্ত জমায়েত করবেন না, আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সন্দেশখালী থানার সঙ্গে সহযোগিতা করুন। সন্দেশখালী থানার পক্ষ থেকে আপামর জনগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে ধামাখালি ঘাট সংলগ্ন এরিয়াতে পুনরায় নতুন করে আবার 144 ধারা জারি করা হয়েছে। और हमारी सहयोगी श्वेता इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। श्वेता, हमारे सहयोगी संतूपान इस समय अंदर हैं और क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइए। देखिए संतूपान अंदर है, लेकिन उनकी इंसाफ की आवाज यहाँ के लोग बने हैं। ये आप जो जी। देख रहे हैं, ये सब लोग संतूपान के साथ खड़े हुए हैं, ये सब लोग रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ खड़े हुए हैं। ये जो आप इतनी भीड़ देख रहे हैं वो इसीलिए यहाँ पर आई है क्योंकि संतूपान अकेले नहीं है। संतूपान ने वो आवाज उठाई है जो बहुत जरूरी थी, संतूपान ने वो सच सामने रखा हुआ बहुत जरूरी था। संदेश खाली किस तरीके से प्रताड़ित हो रहा था, आगे क्या करेंगे भाई? हाईकोर्ट को भी तो चलिए उस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, शुभेंदु अधिकारी को एक बार फिर से रास्ते में रोका गया है। संदेश खाली के रास्ते में शुभेंदु अधिकारी को रोका गया है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली जा रहे थे, वहां के तमाम पीड़ितों से मुलाकात करने, उनका दर्द क्या है यह समझने के लिए, लेकिन एक बार फिर से संदेश खाली के रास्ते पर शुभेंदु अधिकारी को रोका गया है। यानी कि